Hi guys, so welcome to second part of number series here. So in the first part we discussed six fantastic questions, and let's look at the second part here now. Okay, so since this is a question here, for example, this is question one, no, question number 7 here. It says that 23, 21, 24, 19 is a series, right? So what is this number here? Okay, they're asking. See, basically, in such question, what we should do is, we should obviously it's not a series like it is increasing very fast or something like that. So can't be multiplicative here. So we'll go by the difference only. Okay. So once you go by difference here, so look at the difference here. Difference here is -2. Okay. Now difference here is +3. Difference here is -5. Difference here is +7. Difference here is -11. So once you write few values, you'll observe that these are 2, 3, 5, 7, 11. These are consecutive prime numbers. These are consecutive prime numbers. Okay. So that basically means that once I put the value for this as 7 minus 11, this is plus 13. The next prime number minus 17. So one time plus, one time minus. Other one is plus 19. Next is minus 23. Next is plus 29. Okay. So alternately plus and minus sign. So next will be minus 31. So 36 minus 31, 5 should be the answer for this question. Okay. So sometimes if you look at the series, it looks a very random series and you won't be able to catch it. But once we write the difference actually, so we'll come to know that these are the prime numbers, consecutive prime numbers, right? So it won't be tough. Okay. ठीक है चलो look at the next question here. 8th one. 40 by 3, 22, 36 this series here. Now obviously once you observe this series here, it is 40 by 3 to 22. So obviously that it is becoming from fraction to integer. Okay, so what I'm getting here is I'm getting that to be fraction to integer. Okay, that basically means that, and then there are no fractions here, so it has to be multiplicative, right? It has to be multiplicative. That means something I'll multiply here, and after multiplying that the fraction will go off, right? And after it is no fraction here. Okay, so very important to understand that this is we cannot go by difference, because if we go difference, this difference will become fraction, then fraction to integer, then again integer. There cannot be any pattern here. Okay, so let's solve this की how we can reach from 40 by 3 to 22. कैसे पहुंच सकते हैं? Okay, सोचोगे जरा, 40 by 3 to 22 है, तो आप ये सोचोगे 40 by 3 से कैसे है 22? तो पहले हमको फ्रैक्शन एलिमिनेट करना है. तो 40 by 3 है, तो लेट्स से इफ आई मल्टीप्लाई बाई 3 देन इट बिकम्स 40. बट मेरे को 20 के आसपास आना है, तो इफ आई डिवाइड बाई 2 इट बिकम्स 20. तो एंड इफ आई देन ऐड +2 देन इट बिकम्स 22. ये दिख रहा है ना कि 40 by 3 से 22 कैसे पहुंचे. सो हाउ शुड वी रीच फ्रॉम 40 by 3 to 22? तो 40 by 3 में फर्स्ट ऑफ ऑल में मल्टीप्लाइड बाई 3, तो 3 कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, सो इन दैट केस आई विल गेट 40. बट what I need is I need 20 here. तो 20 कैसे आएगा? तो आप बोलोगे ठीक है डिवाइड बाई 2 कर लेते हैं, बिकॉज आई नीड a number near to 20. It's 22 here. Okay, 20, but again I need 22, so +2. So basically क्या हुआ? So what if I observe that it was 40 by 3 initial number multiplied by 3 by 2 +2. Let's see if this is a pattern carried in the next question here. If it is 22 here, so 22 it is into 3 by 2. If I do into 3 by 2, that basically becomes 33. This becomes 33, and then you have 36 here, so it is again +3. So I got the pattern. That means what is observed here. First was into 3 by 2 +2. It is into 3 by 2 +3. Next should be into 3 by 2 +4, right? So if I make it into 3 by 2, that is 54 +4 58. Then it is into 3 by 2, that is 87 +5 is 92. Then it should be into 3 by 2 +6. No, they should be into 3 by 2 +6. So 92 into 3 by 2 is basically 138, +6 will become 144. So 144 will be the answer for this question. Okay, so 92 into 3 by 2 +6. Okay. Okay, so if I see this question here, look at question number 9 here. It says that 97, 99, 111, 147, 227, 377. So obviously it's not a multiplicative series, क्योंकि बहुत फास्ट तो इंक्रीज कर नहीं रहा है ना. तो डिफरेंस लेके देखते हैं. If you observe difference here, difference is 2. This difference is 12. This difference is 36.
this difference is 80, this difference is 150. Now by this time we should realize that कि ये क्या सीरीज क्या चल रहा है, what is the series actually, ठीक है. तो आपको ये बहुत कॉमन सीरीज आपको ये पता होना चाहिए था, ठीक है. Like for what is 2, if you what 2 is 1 cube plus 1 is square, 12, it is 2 cube plus 2 is square, 36, 3 cube plus 3 is square, 80, 4 cube plus 4 is square, 150, 5 cube plus 5 is square. The next one should be 6 cube plus 6 is square. That is equal to 252. Okay, so 252 I should add here, that is 6 cube plus 6 is square, and 377 plus 252 will become 629. So 629 should be the answer for this question. ठीक है. तो ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है ये एक्चुअली. तो आपको ये सीरीज याद होना चाहिए, एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर सीरीज होता है ये. दैट मीन्स इफ यू पुट 1 तो आई गेट 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर 2. इफ आई पुट 2 तो 2 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर इज 12. इफ आई पुट 3 क्यूब प्लस 3 स्क्वायर 36. इफ आई पुट 4 क्यूब प्लस 4 स्क्वायर 80 एंड सो ऑन. ठीक है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए. ओके, सिमिलरली इफ यू लुक एट द नेक्स्ट वन ये एक बार खुद से ट्राई करो. नेक्स्ट वाला भी 10th one. So 29, 31, all these numbers are here. So if again it's not a multiplicative series क्योंकि कुछ चल नहीं रहा है, just normal numbers है. If I see difference, it is 2, it is 10, it is 30, it is 68, it is 130. Again अगर आप observe करोगे तो ये n cube plus n series है. मतलब basically क्या, 1 cube plus 1 is 2. If you put 1 n1, 2 cube plus 2 is 10, n को 2, 3 cube plus 3 is 30, 4 cube plus 4 is 68 and so on. ठीक है, तो ये क्या चल रहा है आपका एन क्यूब प्लस एन सीरीज. यही है, ये यहाँ पे भी है. ये सी हियर इट इज 1 क्यूब प्लस 1, इट इज 2 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर, सो नॉट 2 स्क्वायर 2, दैट इज अगेन ये 10 हो गया. देन ये 30 है, सॉरी इट इज 30, इट इज 3 क्यूब प्लस 3, दैट इज 4 क्यूब प्लस 4. ओके, 4 क्यूब प्लस 4, it is 5 cube plus 5. Next would be 6 cube plus 6. What is 6 cube plus 6? That should be 222. Okay, if I add 222 here, I should get 491. So 491 should be the answer for this question. ठीक है, ये होता है. तो इसे ध्यान, ठीक है, ये सब ध्यान में रखना. n क्यूब प्लस n स्क्वायर, n क्यूब प्लस n पॉइंट सीरीज है. ठीक है, इफ यू लुक एट दीज नंबर्स, नंबर देके रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि ये सीरीज है. ओके, फाइन. लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. सो लुक एट इस क्वेश्चन 11 गाइज. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सो बेसिकली सीरीज है यहाँ पे 4, 3, 4.5, 8.5. आपको क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है रॉन्ग नंबर यहाँ पे. ठीक है, देखो 2-3 चीज़ें बताता हूँ, याद रखना है ऐसे सीरीज के लिए. ना जब भी ऐसा कोई सीरीज होता है ना, जो सीरीज आपका पहले डिक्रीज कर रहा हो फिर इंक्रीज कर रहा हो, एंड इट मस्ट बी इंक्रीजिंग फास्ट. ठीक है, तो अगर ये इंक्रीजिंग फास्ट है तो मल्टीप्लाइंग मतलब मल्टीप्लिकेटिव सीरीज होगा, कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा. ठीक है, एंड ऑब्वियसली इफ इट इज डिक्रीजिंग, सो क्या होता है ना, यहाँ पे कुछ ना कुछ 0.5 से मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटेड होगा. ओके, सो लाइक इट इज इंक्रीजिंग वेरी फास्ट, राइट. वंस इट इज इंक्रीजिंग 3, 4, फिर 8, फिर 20, 53 एंड लाइक 162, तो बहुत फास्ट इंक्रीज कर रहे हैं, राइट. तो 0.5 का मल्टीप्लीकेशन एंड देन मल्टीप्लीकेशन, तो ये चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पे. ओके, सो इफ यू ऑब्जर्व हियर, आप बोलोगे ऐसे 4 से 3 कैसे आ सकता है? मैं बोलूँगा ठीक है, मान लो 4 से 3 क्या हो गया, इंटू 0.5 हो गया, कि 0.5 4 इंटू हाफ इज 2 प्लस 1 इज 3. ठीक है, अच्छा ठीक है. फिर लोगे 3 से 4.5 कैसे आएगा? मैं बोलूँगा 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, और प्लस आप यहाँ पे 1.5 बोलोगे. तो पहले ही बेसिकली क्या था कि आपका यहाँ पे 0.5 मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई हो गया. तो नेक्स्ट टाइम यहाँ से यहाँ 1.5 मल्टीप्लाई होना चाहिए था. सो और यहाँ पे अगर आपने +1 किया है, प्लस 1.5 किया, सो ये शुड बी 2 ईयर. सो 4.5 इंटू 1.5 इज 6.75. ठीक है, प्लस 2 इज 8.75. तो दिस कुड बी रॉन्ग नंबर, राइट. ये रॉन्ग नंबर हो सकता है क्योंकि आपका यहाँ पे आइडेंटिफाई रॉन्ग नंबर करना है. एंड 4.5 का 1.5 इज 6.75 प्लस 2 इज 8.75. तो आगे चेक भी कर लेंगे. ठीक है, इफ इट इज 8.75, नेक्स्ट क्या होना चाहिए था? इट शुड बी इंटू, ये 1.5 था तो आपका इंटू 2 होना चाहिए था, और यहाँ 2 था तो 2.5 होना चाहिए था. चेक करो, 8.75 इंटू 2 इज 17.5 प्लस 2.5 इज 20. सेटिस्फाई कर गया. दैट मीन्स दिस इज द रॉन्ग नंबर. 8.5 इज द रॉन्ग नंबर. दैट्स द आंसर. ठीक है, सो 8.5 इज द आंसर इन दिस क्वेश्चन. दैट्स हाउ यू डू इट, राइट. आगे भी देखो करेगा ना, तो अगर देखोगे जैसे 20 इंटू 2.5 इज 50 प्लस 3 कर दोगे, इंटू 2 इंटू 2.5, 2.5 तो 3.
तो चलता रहेगा सीरीज, राइट। ठीक है, यहाँ पे देखो ये वाले में, इसमें मेरे को क्या करना है, आइडेंटिफाई रॉन्ग नंबर अगेन हियर ऑल्सो। थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज अब ना ये थोड़ा डिफिकल्ट सीरीज है डायरेक्टली सोच पाना, क्योंकि नॉर्मली लोग क्या करते हैं, लोग डिफरेंस वगैरह लेते हैं, पीपल टेक डिफरेंस एंड ऑल, ठीक है, लोग डिफरेंस लेने लगते हैं, बट यहाँ पे ना डिफरेंस का क्या कहानी नहीं है। ओके, व्हाट यू नीड टू ऑब्जर्व हियर इज, जैसे देखो यहाँ पे क्या है, तो अब ना मान लो बहुत लोग डिफरेंस लेंगे यहाँ 109 डिफरेंस लेंगे, फिर -62 लेंगे, फिर 151 लेंगे, देखेंगे काफ़ी रैंडमनेस है, कुछ आ नहीं रहा डिफरेंस से, ठीक है, नथिंग आई एम गेटिंग हियर, वेरी वेरी मच रैंडमनेस। तो इसका सेकंड क्या होता है, थोड़ा आपको ना थोड़ा डिफिकल्ट तरीके से ऑब्जर्व करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा ऑब्जर्व अगर करोगे तो आपको क्या दिखेगा कि यहाँ पे 2 और यहाँ 4 है, तो यहाँ पे 8 है, मतलब 2 × 4 = 8, मतलब एक्सट्रीम डिजिट्स का मल्टीप्लीकेशन इज मिडिल डिजिट। देन 3 × 3 is 9, है ना, देन 3 × 1 is 3, देन 4 × 2 is 8, देन 3 × 3 is 9, तो बट यहाँ 9 या 7, दिस इज रॉन्ग। फिर 1 × 5 is 5, तो ये भी ठीक है। ओके, दैट मीन्स ओनली 373 इज रॉन्ग, सो व्हाट इज आंसर, 373 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट्स इट, ठीक है। सो आई होप ऑल ऑफ यू गॉट दिस, तरीके से करना था इसको। ओके, एंड ऑल्सो गाइस December 28 को जैट का फ्री मॉक है, सो डू गिव दिस ऑन December 28, इट इज जैट मॉक फ्रॉम 9:30 AM to 12:40 PM। तो ये यू शुड नेसेसरली गिव दिस, इसमें काफ़ी रिलेवेंट क्वेश्चंस हैं जैट के, फॉर एग्जांपल अ वेरी हाई क्वालिटी डिसीजन मेकिंग, जहाँ पे आपका अब PYQs नहीं होगा, नो PYQs, so all fresh sets will be there in decision making. Similarly, all fresh sets in DI and quant का ये पूरा सेट प्लस VRC, तो ये कंप्लीट पेपर है ये पूरा, ठीक है, इंक्लूडिंग GK एंड essay ऑल्सो। तो काफ़ी हाई क्वालिटी पेपर है एंड इट विल गिव अ रियल फील टू जैट। आपका जैट 8 जनवरी को है ना, सो ऑल ऑफ यू मस्ट गिव दिस ऑन 28 December at 9:30 AM। ओके, थैंक यू।